Hello dear students, welcome to the online classes of Don Vasco School. In this visual we are going to read chapter 4 of your English book, that is Real English, and the name of the chapter 4, this is a poem and the name of the poem is The Fox and the Grapes. So let us begin with this poem. This is The Fox and the Grapes, and the writer, the poet of this poem is Joseph Lauren. So first we will perform reading of this chapter, this poem, and then I will explain this in Hindi language and English language both. So this video will be bilingual video. So let us start. Let us perform the reading of this poem, and I request you all to pay attention on the tip of my pen and pay attention on every word that I underline and read with me. So let us start. Here we go. Once summer's day a fox was passing through. One summer's day a fox was passing through an orchard, faint he was and hungry too, when suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. Ha! Just the thing, he said, who could resist it? He eyed the purple cluster, jumped and missed it. He coughed, I shall take more careful aim. And he sprang again, results were much the same. Although his lips were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye, and shrugged a shoulder, I am not dry, and lunch is bound to come within the hour. Besides, he said, I am sure those grapes are sour. It is written by Joseph Lauren. Okay, so this poem is a remake of a story, we can say, and this story we have already listened in your earlier classes. So let me explain this chapter. Okay, so here we will begin with the first paragraph, the first two lines. Okay, one summer day a fox was passing through an orchard, faint he was and hungry too. मीन्स बेटा इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? एक समर्स के दिन में, समर्स क्या होता है? गर्मियों के दिन में एक फॉक्स जो पासिंग थ्रू मतलब कहीं से गुजर रहा था, ठीक है? और कहां से गुजर रहा था? एक ऑर्चर्ड से. व्हाट इज ऑर्चर्ड? इट इज अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, वी कैन से. ओके, अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, दैट इज नोन एज ऑर्चर्ड. ओके, तो एक ऑर्चर्ड से गुजर रहा था और वो फेंट था, बिल्कुल थका हुआ था, बिल्कुल कमजोर सा महसूस कर रहा था और हंग्री भी था, बिल्कुल भूखा भी था, ठीक है? अगले दो लाइंस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? When suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. अचानक से, सडनली मींस अचानक से, उसकी जो किन आई है, किन मींस होता है बहुत ही तेज जो चीजें हो, ठीक है? जैसे कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान देता है तो उसको भी कहते हैं, उसका किन अटेंशन है बोर्ड पे, ठीक है? अगर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं कोई टीचर और आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपका किन अटेंशन है. जैसे दुश्मनों के खिलाफ इंडियन आर्मी का किन अटेंशन होता है कि कोई हमारे बॉर्डर्स पे आके कुछ गड़बड़ ना कर दे, ठीक है? तो वैसे उसकी जो किन आईज हैं, बहुत तेज आंखें, ऐसा कह सकते हैं, अचानक से पड़ जाती हैं. कहां पे? अपॉन अ बंच ऑफ ग्रेप्स अपॉन द वॉल. आप इस वॉल को देख सकते हैं, दिस इज ग्रेप वाइन. ओके, एंड हियर आर द ग्रेप्स. तो इस ग्रेप्स पे पड़ जाती है, ठीक है, उस फॉक्स की तेज आंखें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हा, जस्ट द थिंग, ही सेड, who could resist it? He eyed the purple cluster, jumped and missed it. इसका मतलब क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं आपको. हाँ, जस्ट द थिंग कह रहा है कि क्या चीज है, ठीक है? Who could resist it? मतलब कौन इसको पाने के बिना कौन रह सकता है? मतलब कौन अपने आप को इसके पास जाने से रोक सकता है? मतलब सभी को, अगर ग्रेप्स ऐसे पड़े हैं और कोई भी जानवर देखेगा उसको खाने का दिल करेगा, ठीक है? तो यही कह रहा है, कौन रजिस्ट कर सकता है अपने आप को? He eyed the purple cluster. This color is known as purple. The color of this grape, these grapes is purple. And what is cluster? Cluster means a group of something. Okay, group हो किसी चीज का, ठीक है? दैट इज नोन एज क्लस्टर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. जम्प्ड एंड मिस्ड इट, और छलांग लगाता है ये ओल्फ. यहाँ पे आप देख सकते हैं उस ओल्फ को, ठीक है? ये ओल्फ छलांग लगाता है इस ग्रेप्स की तरफ, बट इसको मिस कर जाता है क्योंकि काफी ऊंचा पड़ा होता है ग्रेप्स. आगे बढ़ते हैं. ही कफ्ड, हल्की सी खांसी करता है वो. हम नहीं करते कई बार हमारा, जैसे गले को साफ करने के लिए करते हैं हम,
वैसे ही वो भी कफ करता है। आई शैल टेक मोर केयरफुल, एम मीन्स होता है निशाना, तो मुझे और केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक एम लेना चाहिए, ये फॉक्स अपने आप से कहता है, ठीक है। एंड ही स्प्रैंग मीन्स फिर से छलांग लगाता है। अगेन रिजल्ट वेर मच द सेम, अगला जो रिजल्ट है मतलब फिर से जब छलांग लगाता है तो फिर भी वो मिस कर जाता है, उस ग्रेप तक पहुंच नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। Although his lips were desperate and high, at length he paused to wipe tearful eye. तो although मीन्स होता है यद्यपि, ठीक है। लिप्स मीन्स होता है छलांग, तो डेस्परेट मीन्स होता है किसी चीज को पाने की दृढ़ इच्छा, ठीक है। किसी चीज को पाने की दृढ़ इच्छा कह सकते हैं, खूब ज्यादा किसी चीज को पाने के लिए जब दिल करता है तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, उसके जो लिप्स थे यानी उसकी जो छलांगे थी वो डिस्परेट एंड हाई थी, बहुत ऊंची छलांग लगा रहा था और पाने की किसी चीज को बड़ी कोशिश करता, उस ग्रैप्स के क्लस्टर को पाने की बहुत सारी कोशिश कर रहा था, उसका मन कर रहा था, ठीक है। एट लेंथ ही पास टू वाइप अ टीयरफुल आई, थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो थोड़ी देर रुक जाता है, ठीक है, पॉज हो जाता है, रुक जाता है, ताकि वो उसकी जो आंखें हैं जो खुशी के मारे भर आई हैं या कोशिश करके कोई चीज नहीं मिल रही है उसकी वजह से भर आई हैं, जो भी हो, ठीक है, उसको टीयरफुल मिस होता है कि आंसू से भरी आंखें, ठीक है, उसको साफ करने के लिए वो रुक जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। And shrug a shoulder, I am not dry. And shrug a shoulder, I am not dry. Shrug a shoulder means होता है बेटा अपने कंधे को ऊपर नीचे करना, ठीक है। कई बार हम होता है ना किसी चीज को ऐसे हम शो करने की कोशिश करते हैं कि इसकी कोई परवाह नहीं है हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपसे कैच छूट जाता है, तो आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ओ आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कैच, ओके, छूट तो गया लेकिन मैं इसका अवेयर नहीं था पहले से, इसीलिए वो भी श्रग करता है कि हाँ कोई बात नहीं, चला जाता है, ग्रैप्स नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट ड्राई। बेटा ये आई एम नॉट ड्राई का मतलब ये नहीं है कि मैं सूखा हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, लोग दो एग्जाम्पल्स दूंगा मैं। लोग क्या होते हैं बिल्कुल भूखे प्यासे होते हैं, ठीक है। अगर कोई भूखा प्यासा है, अगर उसको कोई खाने की चीज दिखेगी तो क्या बोलेगा आई एम ड्राई, बोलेगा मैं बिल्कुल भूखा प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं बिल्कुल, आई एम ड्राई मैं बिल्कुल सूखा हूं, मतलब मैं बहुत प्यासा हूं। तो ये इसकी उल्टी बात यहाँ पे लिखी गई है, आई एम नॉट ड्राई, मतलब फॉक्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फॉक्स कहना चाहता है कि नहीं मुझे तो कोई भूख नहीं लगी है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड लंच इज बाउंड टू कम विद इन द आवर, तो कह रहा है कि जो लंच है ना वो घंटे के अंदर अंदर आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे लंच नहीं मिलने वाला, क्या हुआ ग्रैप्स नहीं मिला तो, लेकिन लंच तो मुझे मिल जाएगा, तो विद इन द आवर मिल जाएगा, मतलब इसी घंटे में मुझे लंच मिल जाएगा, कुछ ही देर में मुझे लंच मिलने वाला है, दोपहर का भोजन मिलने वाला है। तो क्या हो गया, ये ग्रैप्स नहीं मिला तो बिसाइड्स ही सेड, मतलब इन सब चीजों के साथ साथ ये भी कहता है, ठीक है, आई एम श्योर दोस ग्रेप्स आर सॉर, तो कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि पक्का ये अंगूर खट्टे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कहानी को आप मतलब ये जो पोएम है इसको कहानी के रूप में आपने यही पढ़ा होगा, अंगूर खट्टे हैं, ऐसे करके एक फ्रेजेस इडियम्स और फ्रेजेस में भी बोला जाता है अंगूर खट्टे हैं, मतलब अगर कोई चीज आपको हासिल नहीं होती है तो आप उसी को खराब कहना स्टार्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज रिटन बाय जोसेफ लॉरेन, ओके। सो लेट अस रीड द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मींस व्हाट, ऑर्चर्ड मींस अ प्लेस वेयर द फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फ्रूट ट्रीज को ग्रो करने की जगह को हम ऑर्चर्ड कहते हैं, मींस इट इज अ टाइप ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, ओके। नेक्स्ट इज फेंट, फेंट मींस होता है बिल्कुल थका होना, ठीक है। वीक, वीक मींस वैसे कमजोर होता है, लेकिन फेंट मींस होता है थका होना, ठीक है। कोई कलर फेंट पड़ जाता है, मतलब वो कलर के अंदर वो क्वालिटी नहीं रह जाती या वो डल हो जाता है, ठीक है। रेजिस्ट मींस होता है कंट्रोल वनसेल्फ, खुद को रोकना, खुद पे काबू पाना। एंड दैट नेक्स्ट इज क्लस्टर, क्लस्टर मींस बंच, द बंच ऑफ ग्रेप्स, as I have already taught you in this same video, that group of something, okay. Desperate means wanting something very much, किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत रखना, that is known as desperate, okay. Wanting something very much, this is known as desperate. And shrug the shoulder means raise and drop the shoulders so to show that you don't know or care about something, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन पोएम को एक्सप्लेन करते वक्त बताया, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा इस मोरल पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ जोसेफ लॉरेन के बारे में है नहीं अवेलेबल, तो इसलिए जोसेफ लॉरेन के अबाउट द पोएट मैं नहीं बताऊंगा आपको, मोरल बता दूंगा, ठीक है। और ये इस पोएम का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ
समरी अगर बताना चाहूँ तो कहानी से ही रिलेटेड है ये पोएम। ये कहानी मैंने जैसे बताया कहानी जैसा पोएम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समरी बताने की भी जरूरत नहीं है। चलिए मोरल जान लेते हैं। क्या कहते हैं, we somehow want to peach that always dangles just beyond our reach until we learn to be upset with what we find too difficult to get। कहने का मतलब पीच मीन्स एक ये फ्रूट होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको चाहने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमारे रीच से, हमारी पहुंच से, ठीक है, हमारी रीच से, दिस इज रीच, रीच मीन्स होता है पहुंच, तो हमारी पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि हमें अपसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, और हार नहीं मान लेना चाहिए। हार मान के ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये काम ही बहुत मुश्किल था, ये काम ही खराब था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले तो अपने पापा को बोला कि मैं 95% स्कोर करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपने बोला अपने पापा को मैं 95% स्कोर करने जा रहा हूँ इस एग्जाम में, और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो आपका नंबर आ गया 65। तो आपने पापा को क्या बोला, आपने बोला पापा इस बार सभी बच्चों का नंबर ही कम है, ठीक है, एंड द पेपर वाज टू हार्ड, पेपर ही बहुत हार्ड था, तो दिस इज अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें आप, इसके लिए दिस इज द मोरल ऑफ दिस पोएम यू कैन से। एंड दिस मच इन दिस वीडियो, we'll meet again with a new video and with a new chapter. Bye everyone, have a nice day, take care.